There is a standard of life described in the New Testament which God wants us to live by. नए नियम में एक स्तर दिया गया है जिससे स्तर के साथ जीने के लिए परमेश्वर चाहता है. And when Paul said, I press toward the mark for this goal, और जब पौलुस कहता है कि उस निशाने की ओर आगे उस लक्ष्य की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं, there was no such thing in the Old Testament. और पुराने नियम में ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती. In the Old Testament, the only goal was get the land of Canaan, और पुराने नियम में एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से उस वाचा के देश में पहुंचना है and drive all the giants away, और पूरी तरह से वो जो दानव जो है उनको बाहर निकाल देना है get their property, और पूरी तरह से उस संपत्ति को ले लेना है and enjoy all the wealth God gives you there, और हर एक धन जो परमेश्वर वहां देता है उसका आनंद लेना है and go 3 times a year to Jerusalem and offer the sacrifices. और साल में 3 बार यरूशलेम में जाना है और बलिदान को चढ़ाना है. And that's all. और इतना ही करना था. Whereas there was no personal goal in one's personal life. और उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं था. There were no commands, there were commands in the Old Testament like don't murder. और पुराने नियम में ऐसे आज्ञाएं थी कि आपको खून नहीं करना है, And don't commit adultery. व्यभिचार नहीं करना है, And don't tell a lie when you're giving a witness in a court. और जब आप कोर्ट में जाते तब झूठी गवाही नहीं देनी है. And honor your father and mother. माता पिता का आदर करना है. They were all external commandments. ये सब बाहरी तौर की आज्ञा थी And they could keep it. Any God-fearing person could keep it. और परमेश्वर का भय मानने वाला कोई भी जन इसका ये करता था. Those 10 commandments, there are many non-Christians also who keep. और इन 10 आज्ञाएं जो है वो बहुत सारे अन्य जाति भी इसका पालन करते हैं. But you never read commandments in the New Old Testament like this. लेकिन पुराने नियम में ऐसी कोई आज्ञा आप नहीं पाते हैं. Don't be a hypocrite. आप किसी भी तरह का ढोंग न करें, Don't be proud. घमंड न करना, Don't be anxious. किसी भी बात की चिंता न करना, Don't love money. और पैसे का लोभ न करे, Don't be angry. क्रोध न करे, Don't lust after women. और स्त्रियों के पीछे लालसा न करे. No such commandments. ऐसी कोई आज्ञा नहीं पाते. But when you come to the New Testament, they're all there. लेकिन नए नियम में हम देखते हैं ये सारी आज्ञाएं वहां है. Just think of these few things I mentioned just now. और सोच के देखिए ये सारी चीजें जो मैंने अभी कही. Don't be a hypocrite. पाखंड न करे, Don't be proud. घमंड न करे, Don't lust after women. स्त्रियों के पीछे लालसा न करे, Don't get angry. क्रोध न करना, Don't be anxious. चिंता न करना, Don't love money. और पैसे का लोभ नहीं, Don't murmur or complain. और शिकायत नहीं करना, कुड़कुड़ाना नहीं. When you pray, don't let anybody know. और जब आप प्रार्थना करें किसी को पता न When you चले. fast, don't let anybody know. जब आप कुछ मांगते देते तब किसी को पता न चले. Is it possible to keep these commandments? क्या संभव ये आज्ञाओं का पालन करना? The question is, did God want us to keep these commandments? और प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर चाहता था कि हम इन आज्ञाओं का पालन करें? And will you, as a father, tell your children to do something which you know is impossible for them to do? क्या आप एक पिता होने के नाते अपने बच्चे को ऐसा कुछ करने को कहेंगे जो करना असंभव है? Like carry 1,000 kilos on your head to some place. और आप अगर क्या अपने बच्चे को कहेंगे 1000 किलो का वजन उठा के कहीं पे जाओ, That's ridiculous. They cannot do it. और ये संभव नहीं है, वो नहीं कर सकते. Is God a father like that? क्या परमेश्वर एक वो पिता के समान नहीं है Who gives us commands that we cannot keep? और ऐसी कोई आज्ञा देगा जिसका हम पालन नहीं कर सकते? And yet all these things I mentioned are in the New Testament. और ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो नए नियम में है. Every one of them. You read the Sermon on the Mount. आप देखिए पहाड़ के उपदेश को देखें, You read Philippians chapter 4. फिलिप्पी 4 अध्याय को पढ़े. All these things that I mentioned are there. मैंने जो बातें आपसे कही वो सब वहां है. So why is it then that most Christians say we cannot keep these commandments? तो फिर क्यों ज्यादातर मसीह इस प्रकार कहते कि इन आज्ञाओं को हम नहीं पालन कर सकते? They read the Bible and say this is an impossible standard. और वे बाइबल को पढ़ते और कहते ये बहुत ही असंभव एक स्तर है. And so they remain in their defeated condition. और वो अपने हारे हुए जीवन की अवस्था में ही रहते हैं. They are like the 10 spies who came to the
border of Canaan and said, we cannot go into this land, impossible. और वे लोग वो 10 जासूसों के समान हैं जो कनान के सीमा पर आकर कहते हैं कि हम उस वाचा के देश में नहीं जा सकते। And 600,000 people joined them and said, yeah, it's impossible. We cannot overcome these giants. और इन जासूसों के बाद 6 लाख लोग भी इनको कहते हैं कि हम आपके जैसे ही हम इस स्थान में नहीं जा And सकते। you know what God said? आप पता है परमेश्वर क्या कहता है? Okay, you will never enter this land. परमेश्वर ने कहा ठीक है, आप कभी भी उस वाचा के देश में You प्रवेश will नहीं die करोगे। in the wilderness without possessing what I wanted to give you. आप जंगल में ही जो बातें आपको वाचा दी गई उसे न पाते हो, जंगल में आप The मर जाएंगे। same thing is happening to Christians, hundreds of thousands of Christians today. और सैकड़ों विश्वासियों के साथ आज वही हो रहा है। I'm not talking about nominal Christians. और मैं साधारण मसीह की बात नहीं कर रहा। Nominal Christians are like the people who stay in Egypt, slaves of sin. और साधारण मसीह वो होते हैं जो पाप में, जो मिस्र की पाप की गुलामी उसी में रहते I'm हैं। talking about people who came out of Egypt, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मिस्र की गुलामी से निकले हैं put the blood on the door and came out. और उन्होंने अपने दरवाजे के ऊपर मेमने का लहू लगाया, वहां से निकले हैं। Picture of those who trusted in the blood of Jesus Christ. और वो एक चित्र है जो यीशु के लहू पर विश्वास Who भरोसा went करते हैं through the baptism of the Red Sea. और पवित्र आत्मा वो लाल समुद्र के बपतिस्मा के अंदर They से वो went निकले in हैं, and came out. उसमें से बाहर निकले वो है। And the baptism of cloud, picture of the baptism of the Holy Spirit came upon them. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो एक बादल के समान उनके ऊपर हुआ, And yet, लेकिन these फिर भी did not enter the land of Canaan or kill the giants. और ये वो दानों को वो नाश नहीं कर पाए और वाचा के देश में प्रवेश न This कर is a पाए। picture of born again Christians और ये चित्र है नए जन्म पाने who वाले are विश्वासियों redeemed by का, the blood of Jesus Christ, और लहू से द्वारा वो खरीदे गए लोग हैं baptized, और बपतिस्मा and लिया है, baptized in the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा उनका हुआ है, maybe speak in tongues also. और शायद वो अन्य भाषा में भी But बात करते हैं। they don't occupy the land of Canaan. इसके बावजूद भी वाचा के देश में कनान में वो प्रवेश नहीं कर पाए। Today, आज what is the land of Canaan for us today? हमारे लिए वाचा का वो कनान देश क्या है? This human body, हमारा ये शरीर, from head to foot, that is the dimensions of the land of Canaan for us. और हमारे सर से लेकर पांव तक का जो भी ये स्तर है, ये हमारा एक वाचा का कनान देश है। Inside this land, many giants have been ruling for years. और इस कनान देश के अंदर, इस शरीर के अंदर बहुत सालों से बहुत ऐसे दानव है, राक्षस है जो इस पर राज्य कर रहे All हैं, those giants are like Goliath. और ये सारे दानव जो है गोलियात के समान हैं। For example, anger. सोच के देखिए, क्रोध, It's a giant. ये बहुत बड़ा दानव है It stands in front of you like Goliath और गोलियात के समान आपके सामने खड़ा होता है and says, "You think you can conquer me? और वो आपको चुनौती देकर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर विजयी हो सकते I हो? have ruled you all your life. और वो कहता है, मैंने जीवन भर आप पर राज्य किया है All your life, I made you an angry man and an angry woman. और पूरा जीवन मैंने तुझे एक क्रोधित स्त्री या पुरुष रखा है। Don't you remember your father and mother? They were also my slaves. और अपने माता पिता को याद रखना, क्या वो मेरे दास नहीं थे, गुलाम? Your father was an angry father. Your mother was an angry mother. तुम्हारी माता और जो पिता थे वो भी एक And क्रोधित मनुष्य the थे। same you don't know, but that was how your grandfather and grandmother और were. आप नहीं जानते, आपकी परदादी दादी जो थी, उस दादा And you वो भी are, ऐसे ही and थे, you are like that, and you will always be like that. और आप भी ऐसे ही, और आप वैसे ही रहोगे। You can go to any church, आप कोई भी कलीसिया में जा speak in सकते हैं, tongues, अन्य भाषा में बोल but you सकते will हैं, remain slave to anger. लेकिन आप क्रोध के गुलाम होकर ही रहेंगे। You will speak in unknown tongues, but you won't be able to control your mother tongue. आप अन्य भाषा में बोलोगे, लेकिन अपनी मातृभाषा को आप नियंत्रण नहीं कर The पाते, giant says, "I rule you," क्योंकि ये दानव कहता है, मैं तुझ पर राज्य करता हूँ। and we say, "Yes, I can never overcome you." और फिर हम कहते हैं, हाँ, मैं कभी क्रोध के ऊपर मैं विजय नहीं हो That's how सकता। all the Israelites stood before Goliath. और इसी प्रकार इस्राएली उस गोलियात के सामने खड़े थे, Till one person, young boy called David came. और एक जवान व्यक्ति दाऊद नाम का वहां He was खड़ा not हुआ, strong. He was not stronger than Goliath. और वो गोलियात से सामर्थ्य But he मजबूत नहीं said, था। he said, "You come to me with all this power. I come to you in the name of the Lord." और वो कहता है, तू बड़े शस्त्रों को लेकर आता है, लेकिन मैं यीशु परमेश्वर के नाम See, से तेरे सामने आता We हूँ। tell children, David killed Goliath with a stone. हम बच्चों को कहते हैं कि दाऊद ने एक पत्थर से गोलियात को मारा। It's okay. We can tell children that. हम बच्चों को कहना ये ठीक बात है, To grown-up people, we say David killed Goliath by faith. लेकिन जो बड़े विश्वासी उनसे इस प्रकार कहते हैं कि दाऊद ने गोलियात को विश्वास के द्वारा His मारा, faith in God made that stone go directly to the place where it could kill और Goliath. दाऊद का विश्वास जो परमेश्वर पे था, उसके द्वारा पत्थर उसके सीधे सिर पर गिरा। Same with Caleb and Joshua. और उसी प्रकार कालेब और यहोशुआ के साथ, They were not stronger than the giants. और वो जो दानव थे उससे मजबूत वो नहीं थे। They said, "But if God helps us, which giant can stand before us?" और वो कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमारा सहायक तो कौन सा दानव शूरवीर हमारे सामने खड़ा रह They सकता were है। 80 years old.
80 साल के वे हैं They didn't trust their muscles. और उनके जो खुद की ताकत है उसके ऊपर वो भरोसा नहीं Trusted रखते, God. लेकिन परमेश्वर पर। So, to press on to God's highest परमेश्वर के उच्च स्तर तक बढ़ने के is लिए like occupying the whole land of Canaan. वो कनान का सारा देश जिस पर हमें राज्य करना They है, could not occupy it in one day. और वो एक दिन पर उस पर राज्य नहीं कर पाए। Just like God did not recreate the earth in one day. जैसे परमेश्वर ने पूरी तरह से पृथ्वी को एक ही दिन में नहीं Day by बनाया, day by day he did it. लेकिन प्रतिदिन एक So- दिन इस तरह बनाया। This principle of slow progress और ये सिद्धांत जो धीरे धीरे बढ़ती जो होती है towards perfection. और सिद्धता की ओर, So the Israelites also went into the land of Canaan and they took a long time to occupy the land. इसी प्रकार इसराइलियों को भी उस कनान देश में जाने के लिए बहुत दिन लगे ताकि उस पर They राज्य कर would सके। face one giant, और एक दानव को चुनौती उन्होंने kill दिया it, और उसको मार दिया occupy his land. और उस देश को ले लेना है। Then they see another giant, फिर उन्होंने और एक शूरवीर या दानव को kill देखा that person, और उसको मारा occupy his land. और उसको ले लेना है। Then another giant, और एक दानव को देखा kill him and occupy his land. और उसको मारना है, उसको That ले is लेना how they है। occupied the land of Canaan. उस प्रकार से कनान के देश को उन्होंने ले लिया। God helped them. परमेश्वर ने उनकी सहायता की। Their strength, they could never kill even one giant. उनकी खुद की सामर्थ्य से वो कभी भी एक दानव या शूरवीर को That भी is ना a मार picture of the सकते। life of victory. और यही एक चित्र है विजयी जीवन का। You don't conquer everything in one day, एक ही दिन में आप सब पर विजय नहीं प्राप्त करते, but one sin at a time. लेकिन एक पाप एक दिन में, And not in your own strength. अपनी सामर्थ्य से नहीं, With God's help, it can be done. लेकिन परमेश्वर की सहायता से ये हो And सकता whatever है। you occupy, लेकिन जिस चीज पर आपको ले लेते whatever हैं giant you kill, और जिस दानव को आप मार गिराते हैं, this land becomes yours. और वो देश जो है आपका बन जाता That is है, how you become spiritually wealthy. और उसी प्रकार आत्मिक रीति से आप धनवान बन जाते हैं। And then there are still many giants in the north of Canaan you have not even seen. और बहुत सारे ऐसे दानव आगे हैं कनान के देश में रास्ते में जिनको आपने अभी नहीं देखा है। So there are many sins in our life which we have not even seen. ऐसे बहुत सारे पाप हमारे जीवन में जहां आज तक हमने उसे देखा तक नहीं है। When I was converted, और जब मेरा उद्धार हुआ I knew certain things were sin. और मुझे पता था कुछ बातें करना या नहीं करना That is पाप like the है, small mini giants that I can see. और तब मैं छोटे छोटे जो दानव थे उसको मैं इस प्रकार देख पाया। But now, after 58 years, लेकिन अब 58 साल के बाद after killing many giants in my life, और मेरे जीवन के बहुत सारे दानवों को मारने के I बाद, am discovering new giants that I never even knew existed. और अभी मैंने बहुत अनेक और दूसरे दानवों को देखा जो मैंने नहीं देख पाया। Little things छोटी छोटी बातें, which other people don't even call sin. और जो और लोग उसको पाप तक नहीं कहते, But when you press on to perfection, you see that as sin. लेकिन जब आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ते तब आप उसे पाप के रूप में देख पाते So, हैं। there is a battle all the way till the end of our life. और हमारे जीवन के अंत तक उस रास्ते में हर एक दिन एक युद्ध है। The Christian life is a battle from beginning till the end. और मसीह जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक एक युद्ध का But it जीवन is है। a battle in which the Lord can help us win every time without a defeat. लेकिन ये ऐसा युद्ध है जहां परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है ताकि हम उसमें जीत सके। A giant may push me down for a moment, but I'll finally get up and kill him. वो दानव शायद मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे गिरा सकता है, लेकिन उसे हटाकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। But you must believe that the Lord will help you to bring every giant beneath your feet. और आपको इस चीज पर विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है उस दानव को गिराने के लिए। Romans 6:14. रोमियो 6:14। See, sin cannot have dominion over you because you're under grace and not under law. और इस प्रकार वचन कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Let me read it like this. हम इस प्रकार इसे पढ़ते हैं, No sin can conquer you, कोई भी पाप मुझ पर प्रभुता न but करेगा, you will conquer sin. लेकिन मैं पाप पर विजयी Every sin होऊंगा। will be under your feet. और हर एक पाप हमारे पांव के नीचे होगा। What does it mean, not under law? और उसका मतलब क्या है कि व्यवस्था के अधीन न होना। It means you're not fighting in your own strength. इसका मतलब कि आप अपनी सामर्थ्य में लड़ाई नहीं कर रहे। Under law means you yourself are trying to kill the giant. और व्यवस्था के अधीन रहना मतलब अपने खुद की ताकत से उस दानव को मार गिराने की कोशिश You करना। tried that for years and he always defeated you. और बहुत सालों से आपने इस प्रयत्नों को किया और हर बार आप हारे हैं। But now, grace is God's strength coming to help you. लेकिन हम अनुग्रह के अधीन, जिसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य से उसको मार गिराते हैं, Then you can bring him under your feet. और उसके बाद उसको एक दिन पैरों तले So लाते as हैं। long to be under law means you're keeping on struggling with your own strength. You will never win. I'll tell you, in 100 years you will not win. और तुम व्यवस्था के अधीन रहकर अगर करेंगे तो 100 सालों तक भी आप उस पर विजय नहीं प्राप्त Because you're पाएंगे। struggling yourself. आप संघर्ष करते रहेंगे अपने आप से।
You have to ask God for His grace or His power. हमें परमेश्वर से अनुग्रह या उसके सामर्थ को मांगना है। See, what does grace mean? और अनुग्रह का मतलब क्या है? See 2 Corinthians 12. दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय। The Lord told Paul, प्रभु पौलुस से कहता है यहाँ 2 Corinthians in chapter 12, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय verse 9. 9 वचन। You read it as one sentence. उसको एक ही शब्द एक ही वाक्य में My पढ़ें। grace is sufficient for you because my power is perfected in your weakness. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। See, my grace is equal to my power. That's what this verse says. इसका मतलब है कि मेरा उसका अनुग्रह जो उसकी सामर्थ के बराबर है। That's the meaning of this. और उसका मतलब ये होता है, Why is my grace sufficient to help you in every situation? क्यों परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए हमारी हर एक निर्बलता में काफी है? Because my grace is the same as my power. क्योंकि उसका जो अनुग्रह है उसके सामर्थ के बराबर है। My power will perfect itself completely in your weakness. और मेरा सामर्थ्य आपकी निर्बलता के अंदर तुम्हें पूरी तरह से सिद्ध करेगा। Paul says, if that is the case, I will boast in my weakness. और पौलुस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बड़े आनंद से निर्बलताओं पर घमंड Because करूंगा, then the power of Christ will rest on me. क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर प्रभुता So I have करेगी। to come to Jesus and say, Lord, I am weak. I cannot conquer this anger and this lust and all these things. और तभी यीशु के पास आकर हमें ये कबूल करना है कि प्रभु अपने सामर्थ से इस क्रोध के ऊपर विजय नहीं I प्राप्त कर want you to सकता। give me the power of your Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा के आपके सामर्थ I चाहिए want you to pour out upon me the spirit of grace. और ये अनुग्रह का जो सामर्थ जो अनुग्रह मुझ पर आप Fill ले me लें from within और मुझे भीतर से भरिए so that I can overcome. ताकि मैं विजय प्राप्त कर सकूं। So, but that will only come if you believe that God, what God has commanded, is really the command of God. आप तभी इस पर विश्वास करें क्योंकि तब जब परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी सच में वो आपके लिए एक आज्ञा है। So, I feel, my conviction is that the vast majority of Christians, even though they say the Bible is the word of God, they don't believe it. मैं ये चीज मैं विश्वास करता हूँ, बहुत सारे मसीह ये प्रभु का वचन में विश्वास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो सच में इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। They don't believe it's the word of God. वे विश्वास नहीं करते कि ये परमेश्वर का वचन है। If there is a law in a particular city in India, अगर भारत के कोई राज्य के अंदर शहर के अंदर अगर कोई नियम है, say in the whole of Bombay or Maharashtra, और महाराष्ट्र या मुंबई के अंदर अगर कोई कानून है that from next week onwards, अगले सप्ताह से लेकर any motorcyclist driving without a helmet will be fined 50,000 rupees. और ऐसा नियम आ जाए कि अगले हफ्ते से कोई भी बाइक चलाने वाला हेलमेट के बिना अगर चलता है तो उसको 50,000 का दंड देना होगा। Will you buy a helmet? क्या आप हेलमेट खरीदेंगे? It's a human law. ये एक मानवीय कानून है। And you got to imagine one more thing. और एक और दूसरी कल्पना करना है, It's difficult to imagine. और ये बहुत कठिन है कल्पना करना। No policeman is corrupt. और कोई भी पुलिस वाला जो है वो भ्रष्टाचार नहीं करता यहाँ पे। Let's imagine we are living in a सिर्फ place कल्पना where करना है that we are living in a country where there's no corrupt policeman. और ऐसे देश में हम रह रहे हैं जहाँ पे पुलिस वाले बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं करते You हैं, can't give him 500 rupees and escape. और उसको 500 रुपए देके आप वहां से भाग नहीं सकते। 50,000 rupees. 50,000 देना ही है, We will obey it. We will obey that law. और हम उसका आज्ञा पालन करेंगे। Why is it we don't take God's word in the same way? क्यों फिर हम प्रभु का वचन इस तरह नहीं ले पाते? For example, now there is a law. जैसे हम अभी एक कानून है, You must not even have these old 1,000 rupee notes with you. अभी हमारे पास पुराना जो 1,000 का नोट जो है अभी हमारे पास होना तक नहीं चाहिए। You should not be seen with a 1,000 rupee note anywhere. और आपको कहीं पर भी 1,000 का नोट आपके पास नहीं रखना है। You can be taken to court. आपको कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं। And what if the word of God says, और परमेश्वर का वचन क्या कहता like है? the government said, put away all the 1,000 rupee notes, अब अगर सरकार कहता है कि हर एक 1,000 के नोट आप निकाल दीजिए, all those old 1,000 rupee notes. पुराने सारे 1,000 के नोट निकाल You must दीजिए, not even have one in your house. आपके घर में एक भी नहीं होना It चाहिए। is a law, by the way. और ये एक नियम है। And here is another command of God. और यहाँ पर परमेश्वर की और एक आज्ञा हम देखते हैं, Ephesians 4:31. इफिसियों 4:31। Just like put away all the old 1,000 rupee notes, और जैसे पुराने 1,000 के नोट आप निकाल दो, put away all anger. वहां लिखता है हर एक क्रोध को आप निकाल दीजिए। Have you put it away? क्या आपने बाहर निकाला है? What is the government saying? Put away 1,000 rupee notes. यहाँ एक सरकार बता रही है कि पुराने 1,000 के और- नोट निकाल दीजिए, सारे नोट निकाल दीजिए। And here it says, let
all bitterness and all anger be put away from you, और वचन कहता है कि यहाँ पर सारी कड़वाहट, सारा क्रोध तुम दूर कर दीजिए along with all hatred. और सारा बैर भाव दूर करे। How many Christians have taken this one verse seriously? और कितने मसीह ने इस एक वचन को गंभीरता से लिया है। Forget all the other commands, just take one. दूसरी और सारी आज्ञाओं को भूल जाए, इसको इस याद करे। That is why I say many Christians fear the government laws more than the laws of God. इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे मसीह एक परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर सरकार की आज्ञाओं का पालन करने के लिए डरते हैं। No wonder such Christians will never get victory over sin. और इसमें कोई ताजुब नहीं है कि ऐसे मसीह को Because कभी भी पाप पर विजय नहीं प्राप्त होगा। Basic thing is they fear man more than they fear God. मूलभूत यह है कि वो परमेश्वर से बढ़कर इस संसार के मनुष्य का भय मानते That हैं is what God is testing. और इसी में परमेश्वर में परखता है। And you say it's very difficult. और हम कहते हैं कि बहुत कठिन बात है ये। That's exactly what those 10 spies said when they saw the giants. और यही 10 जासूसों ने कहा जब उन्होंने बड़े दानवों को देखा। God was so angry with them. और परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ उनसे। You're insulting me. तुम मेरा अपमान कर रहे हो। In the sight of God, those giants are like little ants. और परमेश्वर की दृष्टि में उसके सामने ये बड़े बड़े दानव एक चींटी के समान हैं। Caleb and Joshua said that. In the sight of God, what are this? There's nothing. और कालेब और यहोशुआ ने कहा कि परमेश्वर के सामने ये बड़े दानव कुछ भी नहीं है। That is faith. और ये विश्वास है। To say to anger, bitterness, whatever sin is ruling your life, you may be stronger than me, but when God is on my side, you cannot overcome me. और इसी प्रकार के ये विश्वास है कि जो भी पाप, क्रोध, कड़वाहट या बैरभाव हम पर राज्य करता होगा, उससे कहना कि मैं अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने तो कुछ नहीं But है। it has to begin with believing that this is God's word. लेकिन ये आरंभ तब होता है जब हम विश्वास करते हैं ये परमेश्वर का वचन है। Supposing you just heard a rumor that all the 1,000 rupee notes must be put away. और जब आपने सिर्फ एक अफवाह सुनी जहां पर कहा कि 1000 के नोट सारे Yeah, दूर you किए said जाए, people are saying that, but I haven't seen the government order. और सारे लोग तो कह रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक वो कानूनी कागजात नहीं देखे Because हैं। sometimes there are so many rumors that float around. और जो भी हम बातें सुन रहे वो शायद अफवाह ही है। But when you actually see the government order लेकिन जब उस कानूनी पत्र को आप देखते हैं issued by the government of India, और जब गवर्नमेंट और भारत की सरकार द्वारा all वो दिया these जाता है 1,000 rupee notes must be put away, every one of them. और हर एक 1000 के पुराने नोट निकाल दिए जाने चाहिए, Then you see, hey, this is an order, then I better obey it. तब आपको लगता है कि ये तो सरकार का एक ऑर्डर है Because I don't want to be caught with one of these notes with me. और कोई भी नोट के कारण मैं पकड़े जाना नहीं चाहता। Now, because you believe that is the government order, क्योंकि आपने विश्वास किया ये सरकार So- का दिया हुआ आदेश है। all I want to ask is, do you believe the Bible is the word of God? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सच में आप विश्वास करते बाइबल परमेश्वर का वचन है? I am convinced that even though everybody says yes, और मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात पर कि ये परमेश्वर का वचन है। everybody says yes, but they don't actually believe it. सारे लोग हाँ तो कहते लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। Because if you believed it, अगर आपने विश्वास how किया can you होता take such a word lightly, put away all anger? और तो तब कब आप क्यों आप साधारण लेंगे इस वचन को जब लिखा हुआ है कि सारे क्रोध को आप दूर कर दीजिए? I'll tell you in my own case, मैं अपने जीवन से कहना चाहता when I हूँ, was born again, I believed this is the word of God and I started reading it. और जब मेरा नया जन्म हुआ और मैं वचन को पढ़ने लगा, But I'll tell you my testimony. मैं अपनी गवाही देना I चाहता was हूँ। defeated, thought life, anger, everything. और मैं पूरी तरह से हारा हुआ व्यक्ति था मेरे विचारों में, मेरे क्रोध के कारण। Didn't I read such verses? क्या मैंने ऐसे वचनों को नहीं पढ़ा था? But I would just take it lightly. मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने उसे साधारण तौर से लिया। People around me are not obeying it. Why should I obey it? मेरे आसपास के लोग उसका पालन नहीं करते, क्यों मुझे करना है The फिर? preacher in the church is not obeying it. और जो प्रचारक कलीसिया के वो इसका पालन नहीं करते। So I had no good examples. मेरे सामने कोई अच्छा उदाहरण नहीं था। I never had anyone in my life turn around to me and say, Zach, follow me as I follow Christ. और मेरे जीवन काल में कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला या नहीं देखा जो मुझे कह सके कि जैसे मैं परमेश्वर यीशु का अनुसरण करता हूँ, जैक ब्रदर आप मेरा अनुसरण कीजिए। Paul said that. पौलुस ने ऐसा कहा। And I say, Lord, it's only in Paul's time somebody can say it. और मैंने कहा कि पौलुस के समय में कोई कह सका। I've never heard anybody in my life tell me, follow me as I follow और Christ. मैंने कभी भी मेरे जीवन काल में कहते नहीं सुना कि मेरा अनुसरण करो। Is it necessary? क्या ये जरूरी है? Does God want only people who preach or people who can say, follow me as I follow Christ? और परमेश्वर केवल प्रचार करने वालों को चाहता है या ऐसे लोग जो कह सके कि मेरा अनुसरण करो? What's the use of a person saying, listen, climb this mountain? I mean, I can't climb it, but you climb it. अगर कोई कहता है कि इस पर्वत पर चढ़ो, मैं चढ़ नहीं सकता, आप चढ़िए।
You climb it. आप A चढ़िए। lot of preaching is like that. बहुत सारे प्रचार इस Or they प्रकार don't हैं even talk about the mountain. और वो प्रचार पर चढ़ने की बात Yeah, करते just हैं live in this plain level all your life. और हाँ- Don't climb anything. और अपने जीवन में एक साधारण उस सपाट भूमि पर रहते और औरों को प्रचार करते पहाड़ चढ़ने They का। don't respect the word of God. वो परमेश्वर के वचन So का आदर the नहीं करते। fundamental question I discovered was this. और मूलभूत सत्य जो मैंने ढूंढ निकाला वो ये है, Do I believe this is the word of God? क्या मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर का वचन है? Let me read you 2 Timothy 3:16. और दूसरा तिमोथी 3:16 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। All scripture is inspired by God. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। All scripture. संपूर्ण पवित्र It शास्त्र। says it's the breath of God, it says. और वहां लिखा है कि वो परमेश्वर की एक सांस के समान है The breath of God has produced scripture. और परमेश्वर की सांस के द्वारा ये वचन उत्पन्न हुए And हैं it is profitable for teaching, reproof, correction, training in righteousness. और उपदेश समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक। So क्यों? that the man of God may be perfect, equipped for every good work. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, So that I can fulfill all of God's will in my life. ताकि मैं परमेश्वर की हर एक परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा कर सकूं। And scripture, all scripture is inspired by God. और संपूर्ण पवित्रता से उसकी प्रेरणा से रचा है। But I mean, I read those verses, मैंने इन वचनों को पढ़ा है but for 16 years after I was born again, और मेरा उद्धार नया जन्म होने के बाद 16 साल तक I never took these commands seriously. और मैंने इन आज्ञाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। I used to read Philippians 4:4. और मैं फिलिपियो 4:4 पढ़ता था, Rejoice in the Lord always. परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। I said, I never even took it seriously. और मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया I used to be discouraged, gloomy, और मैं निराश होता था had bad moods. और ऐसे खराब मूड में होता था। Okay, I'm all right. But और here मैं it ठीक था says, उससे। here it says 24 hours a day, 7 days a week, I must rejoice लेकिन यहाँ वचन कहता है कि दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन मुझे आनंद करना है in the Lord, परमेश्वर में, not in my circumstances. मेरी परिस्थितियों में नहीं। We cannot rejoice in our circumstances. हमारी परिस्थितियों में हम आनंद नहीं मना How can सकते। you rejoice if you have a serious sickness? अगर आपके अंदर कोई गंभीर रोग है तो कैसे आप No, आनंद but मना it says सकते हैं? rejoice in the Lord. लेकिन हमें परमेश्वर में आनंद Always. उठाना है, Always. हमेशा, Because He doesn't change. क्योंकि वो बदलता नहीं है। And I did not know that life. और मुझे ये पता नहीं था Because I never took it seriously. क्योंकि मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था I thought it is a suggestion, not a command. और मुझे लगा ये सिर्फ एक सुझाव है, एक आज्ञा नहीं है। I discovered now there are no suggestions in the Bible. और मैंने ये ढूंढ निकाला कि बाइबल में कोई सुझाव नहीं दिए Everything गए, is a command. हर एक चीज ये आज्ञा है। And I take it seriously if I think that the person who's given the command is a very important person. और मैं इस तरह से लेता हूं कि जो दिया गया है वो परमेश्वर के प्रेरित के द्वारा दिया गया है। And once I realize these are commands of God, और जब मुझे एहसास हो जाता है कि ये परमेश्वर की दी हुई then I आज्ञा है, began to take it seriously. तब मैं उसे गंभीरता से लेने लगता हूँ। Verse 6. और 6 वचन में Be कहता है, anxious for nothing, किसी भी बात की चिंता मत but करो। whenever a problem arises, take it to God in prayer. कभी भी समस्या आती है परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लेकर जाए। I used to be anxious most of the time. और बहुत सारा समय मैं चिंता में बिताता था। What about that verse? लेकिन इस वचन का क्या? Yeah, I'd say nobody obeys it. और कोई इसे नहीं कर पाता। So I discovered that I looked around and I did not see examples who took these things seriously. और मैंने ढूंढ निकाला कि मेरे आसपास ऐसे कोई भी उदाहरण नहीं था जो इस वचन के आधार पर चले। I never heard a person tell me in all my younger days how I could rejoice always and how I could be anxious for और nothing. मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो जवानी के दिनों में मुझे कह सके कैसे मैं हमेशा परमेश्वर में आनंदित रह Or सकता who हूँ। could testify that has become true in my life. और अगर ऐसे कोई व्यक्ति जो गवाही दे सके कि ये सत्य मेरे जीवन में हुआ है, So I thought it's impossible. और मुझे लगा ये असंभव है। These are all nice theories in the Bible. और ये वचन के अंदर एक कथा कहानी प्रकार है, It doesn't work for anybody. ये किसी के लिए कार्य नहीं करता। Or for example, Ephesians chapter 5, और उदाहरण के तौर पे इफिसियों 6 अध्याय 5 अध्याय where it is written, जहां लिखा है verse 20, 20 वचन, always giving thanks for everything in the name of our Lord Jesus Christ. और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता का धन्यवाद करते रहो। Always giving thanks, और सदा धन्यवाद करना है, never having a complaint about anything, और किसी भी चीज के लिए शिकायत नहीं करना है, complaining about nothing, और किसी भी चीज की शिकायत नहीं करना है, always giving thanks. हर एक बात के लिए हर चीज में धन्यवाद देना I है। used to say that's impossible. और मैंने कहा ये असंभव बात है। Just like many of you are saying. और जैसे आप हम में से कितने लोग कहते हैं, Why?
क्यों? Because I did not think this is Almighty God giving a command. क्योंकि मैंने इसको इस तरह नहीं लिया कि ये परमेश्वर जो सर्व सामर्थ्य उसकी आज्ञा है, Didn't believe this is the word of God. और मैंने नहीं विश्वास किया परमेश्वर का ये But वचन है। I would respect it. मैं इसका आदर करता हूँ, I wouldn't keep the Bible on the ground. मैं उसको जमीन पर बाइबल को नहीं रखता हूँ। There's some people who say you must never keep any book on top of the Bible. It's always on top of every और other. कोई व्यक्ति ऐसे कुछ लोग बोलते कि बाइबल के ऊपर कभी भी कोई पुस्तक नहीं रखना है, हमेशा ऊपर होना You चाहिए। keep it on top of everything and you get angry and you complain and grumble. What is the use of और that? सबसे ऊपर पुस्तक रख के भी आप फिर क्रोध करते हो, कुड़कुड़ाते हो, शिकायत करते हो, It's all ritual. और ये सब एक रीति रिवाज है। Philippians 2, फिलिपियो 2 अध्याय verse 14. 14 वचन। Do all things without grumbling or complaining. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। Do you do that? क्या आप करते हैं? I'm just showing you a few verses. मैं कुछ वचन आपको दिखा रहा The हूँ। question comes, can anybody live this life? और प्रश्न ये है कि क्या कोई भी ऐसा जीवन जी सकता है? Okay, let me read 2 Corinthians chapter 2, दूसरा कुरिन्ती 2 अध्याय verse 14. 14 वचन। Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and manifests the sweet aroma of his knowledge in every place. परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता The है। important word that is always. और यहाँ पे महत्व का वचन जो है वो हमेशा Always in triumph? और सदा जय में ले जाता है। Not me. God leads me always in triumph in Christ. लेकिन मसीह हमें वो जय के उत्सव में लेकर जाता है। It's not my strength, Paul और मेरा says. सामर्थ नहीं है, पौलुस कहता है। God परमेश्वर leads me in triumph in Christ always. और उसके द्वारा मसीह में सदा मुझको जयवंत So करता the है। sweet aroma of his knowledge I can be seen in me in every place. और ताकि उसके ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह वो फैलती है। We are a fragrance of Christ to God, verse 15. और 15 वचन में लिखा है कि उद्धार पाने और नाशवाने होने के लिए परमेश्वर के निकट हम मसीह की सुगंध है। So I say, Lord, it's not like that always in my life. और मैं परमेश्वर से कहता है, प्रभु ये सदा सर्वदा मेरे जीवन में ऐसा अनुभव नहीं है। Sometimes it's a good aroma, sometimes it's a stink. और कभी कभी सुगंध का ऐसा एक अनुभव मिलता है, लेकिन कभी कभी वो दुर्गंध आता है मेरे जीवन से। How can you come to this life? और कैसे मैं इस जीवन में आ सकता हूँ? Paul says, always. पौलुस कहता है हमेशा। See another verse. दूसरा वचन 1 Corinthians in chapter 4. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय। This is Paul's testimony. यहाँ पौलुस की गवाही है। He says in 1 Corinthians 4, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय verse 4, 4 वचन। I am conscious of nothing against myself. वो कहते हैं मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। That means my conscience is not convicting me of any sin. इसका मतलब मेरा विवेक मुझे किसी भी पाप से दोषी नहीं ठहराता है। But I लेकिन am not fully acquitted because the one who examines me is the Lord. क्योंकि मैं निर्दोष नहीं ठहरता, मेरा परखने वाला प्रभु है। That means even though I am not conscious of any sin, इसका मतलब कि अगर मैं जानकार रखता हूं पाप की, unconsciously there must be so many sins in my life I don't know. उसके बावजूद भी न जानते हुए ऐसे पाप मेरे जीवन में हो सकते हैं जो मैं नहीं जानता। so I can't say I've become like Jesus. और मैं ये नहीं कह सकता मैं यीशु के समान बन गया But in हूं। my conscious life, I'm not doing anything wrong. लेकिन मेरे विवेक के द्वारा मैं जानकर कोई पाप नहीं करता हूं। I'll tell you my testimony. मेरी गवाही खुद की I दूंगा। read these verses which I just quoted to you. और जो वचन मैंने अभी बताया मैंने इसको बहुत बार पढ़ा And the है। first thing I said was, Lord, that even though I'm a Christian for 16 years, that is not my testimony. लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा 16 साल तक मसीह हूं, लेकिन ये मेरी गवाही नहीं है। I have to honestly say that I cannot say that. और मैं ईमानदारी से मैंने कहा कि ये मेरे जीवन में नहीं है। And I've never heard someone else telling me that also. और मैंने कभी सुना नहीं कि और कोई इस वचन को मुझे इस तरह सिखाता। I said, okay, let me seek God myself. और मैंने अपने आप से उस परमेश्वर को ढूंढा। I was so desperate that I said, Lord, if you don't do this for me, I will completely stop preaching. और मैं इतना तीव्र इच्छा रखता था कि प्रभु अगर आप मुझे नहीं सिखाएंगे तो मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। I want this life described in the New Testament. क्योंकि इस नए नियम में जो जीवन की व्याख्या यहाँ दी है वो मुझे I चाहिए। don't care what it costs. मुझे इसके कोई फर्क नहीं पड़ता इसका क्या कीमत होगा। It's like saying, send me the bill, Lord, I'll pay it. इसका दूसरे शब्दों में प्रभु आप मुझे उस बिल को भेजे, मैं उसको दूंगा। Whatever price I have to pay. कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े। And I sought and I prayed and God filled me with His Holy Spirit. और मैंने इसको यत्न से ढूंढा और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरा। And just like it says in Genesis chapter 1, the Spirit of God began to brood. और जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है परमेश्वर का आत्मा वहां मंडरा रहा था। Not all of a sudden, but day by day, like in Genesis 1, things began to change. और अचानक से नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके वहां परिस्थितियां बदलने लगी। Day by day work is not completed in my life.
और एक दिन प्रतिदिन वो काम जो है पूरा नहीं हुआ मेरे जीवन में, I'm moving towards perfection. पर मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा हूं. It's something like a child who's gotten to first standard, और एक मान लीजिए एक बच्चा जो एक पहली कक्षा में आता है, only 6 years old, वो 6 साल का है, and you ask him, what do you want to do, son? और उसको आप बेटे को पूछे, बेटा आप क्या करना चाहते हैं? I want to get a PhD. और वो कहता है मुझे PhD करना है. When will you get it? Next year? और कब उसको कब मिलेगा? दूसरे साल मिल जाएगा? No, it may take me 20 years. और उसे तुरंत नहीं मिलेगा, उसे शायद 20 साल लगेंगे. Next year I'll go to second standard. लेकिन दूसरे साल वो दूसरी कक्षा में जाएगा. Next year I'll go to third standard. उसके आगे तीसरी कक्षा में जाएगा. But I won't give up till I get my PhD. और मैं तब तक मैं PhD प्राप्त नहीं करता, मैं हार नहीं मानूंगा. What a wonderful ambition a child can have like that. और कितनी अद्भुत ये महत्वाकांक्षा एक बच्चे में He है. knows it'll take time. उसको पता है ये इसको समय He लगेगा. knows he has to work hard. उसको पता है उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. And when he finally gets his PhD, और जब उसे PhD मिल जाता है, and he says, I say, are you happy now? और फिर उससे पूछते कि आप खुश हैं? He says, no. वो कहता है नहीं. I've discovered there's so much more in this field I have to learn. और वो कहता है इस क्षेत्र के अंदर और बहुत सारी चीजें जो मुझे And सीखनी he's है. going beyond PhD now. अभी to वो something PhD से भी more. आगे बढ़ रहे हैं और कुछ प्राप्त करना है. What a passion some people have for education. और ये अभ्यास के अंदर कितनी एक अच्छी धुन है किसी They're not लोगों like के लिए. these lazy people after 10th standard, they say that is enough of all this education. और कुछ लोग आलसी लोग 10वीं के बाद उनको पढ़ना नहीं, ये सब मेरे काम का नहीं है I ऐसे find करके. this is a picture of different type of Christians. और मैं देखता हूँ ये अंतर है अलग अलग Some विश्वासियों people का. at 4th standard, they say, I can read and write, that's enough for me. और चौथी कक्षा में कुछ विश्वासी आके कहते हैं अब मैं पढ़ना लिखना जान गया हूं, ये मेरे लिए Some काफी है. believers are like that. My sins are forgiven, I'm going to heaven. और वो कहते हैं कि मेरे पाप क्षमा हुए, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ. I can read and write, I don't need any more education. और अब मैं लिखना पढ़ना जानता हूँ, अभी मुझे ज्यादा अभ्यास नहीं How चाहिए. many of you will be happy if your children say that? कितने ये खुश होंगे जब आपके बच्चे ऐसा कहेंगे, I can read and write, मैं पढ़ना लिखना सीख I गया can हूँ add and subtract. और मैं गुनाहगार भागाकार ये सूख गया हूँ. Now I don't want any more education. अब मुझे आगे ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी How है. many of you will say, oh son, that's great. और You कितने can माँ read. बाप कहेंगे बच्चा ये बहुत बढ़िया है That's more than enough in this world. और इस संसार में बहुत अच्छा है और इससे ये काफी है. None of you will say that. और कोई भी आप में से You ऐसा want नहीं your कहेगा. children to study more, study more, study more. और अपने बच्चों को कहीं और पढ़ो और आगे पढ़ो. You'll be unhappy if your child drops out after just learning to read and write. अगर आपका बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाए उसके बाद स्कूल छोड़ देता, आप खुश नहीं होंगे. When God sees so many of his children just say, I'm going to heaven now. और जब परमेश्वर ऐसे बच्चों को देखता है अपने जो बस अभी मैं स्वर्ग जाना है, That's exactly like that child. I know how to read and write. और उसी प्रकार उस बच्चे के समान है जो सिर्फ लिखना पढ़ना सीख And गया if है. you as a father and mother are not happy with such a child, I want to tell you in Jesus' name, God is not happy with you. अगर आप माता पिता होकर अपने बच्चे के लिए खुश नहीं है तो कैसे मैं यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा. You won't be angry with that child, आप उससे क्रोधित नहीं होंगे बच्चे से, but you'll be sad. लेकिन आप खेदित होंगे. My child is happy with second standard education and that's enough for him. क्या मेरा बच्चा दूसरे कक्षा की पढ़ाई से ही वो संतुष्ट हो गया और वो उसके He लिए wants काफी to है. drop out of school in second standard because he can read and write. और वो लिखना पढ़ना सीख गया इसलिए वहां से निकलना चाहता है. It's no use punishing him. He's not interested. और उसको वो दिलचस्पी नहीं है, उसको सजा देने से कोई फायदा But नहीं. you won't be angry, but you'll be so sad. आप उस पर क्रोधित नहीं होंगे लेकिन खेद लगेगा आपको. God is like that. परमेश्वर ऐसा ही है. He's terribly disappointed with many Christians who have no interest in overcoming sin in their life. परमेश्वर ऐसे विश्वासियों से जिनको विजय प्राप्त करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं, ऐसे लोगों से वो बहुत ही क्रोधित है. They read these verses I just read to you. जैसे मैंने वचन पढ़ा वो वचन को तो पढ़ते They हैं. see the testimony of a man like Paul who says, thanks be to God who always leads me in victory. पौलुस जैसे व्यक्ति की गवाही सुनते जिसने कहा हमेशा परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में मुझे जयवंत वो करता They है. say, who's going to take all that trouble? लेकिन वो सोचते कि ये सारे ये समस्या हम क्यों I लें? know how to read and write. मैं लिखना पढ़ना सीख गया हूं, I am going to heaven. अब मैं स्वर्ग जाऊंगा. God feels like with you exactly like you feel with a child who stops at second standard. और जैसे आप अपने बच्चे के लिए सोचते हो और अनुभव करते हैं वैसे ही परमेश्वर आपके लिए मसीहों के लिए And अनुभव करता The है. worst part is that you don't realize that every time you sin, the devil accuses you to God. और आप इस चीज का एहसास नहीं करते, हर बार जब आप पाप करते हैं शैतान जो है परमेश्वर पर वो आलोचना या दोषित उसे ठहराता है. See Revelation in chapter 12. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय. In Revelation chapter 12, we read like this. 12 अध्याय में इस प्रकार हम पढ़ते हैं. It's talking about the casting down of Satan in verse 10.
और 10 वचन में जो शैतान को गिराया गया उसके बारे में हम पढ़ते And हैं he's given a title there, the accuser of the brothers. और वहां पे उसे शीर्षक वो देता है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला। He's not the accuser of the world. वो संसार पर दोष लगाने वाला नहीं है, That is verse 9. He's the deceiver of the world. संसार को तो वो धोखा देने वाला है। He's the deceiver of the world, but the accuser of the believers. वो संसार को धोखा देने वाला है, लेकिन लोगों जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर दोष लगाने वाला है। Why doesn't he accuse worldly people? But they are already his children. वो संसार के लोगों पर दोष क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो उसके ही बच्चे But हैं। he's accusing God's children. पर वो परमेश्वर के बच्चों पर वो दोष लगाता है। How frequently does he accuse them? और कितनी बार वो उसको दोष लगाता Verse है। 10, day and night. 10 वचन में कहता है दिन और रात। The devil is a full-time worker. जो शैतान जो है वो पूर्णकालीन सेवा में है, 24 hours. 24 घंटे, His job is accusing. और वो दोष लगाने के काम में लगा हुआ है। Somebody there. और वहां पर कोई He says, God, वो look at that कहता है fellow. देख प्रभु, See how he's talking to his wife now. वो कैसे अपनी पत्नी से बात कर रहा है, देख See how she's talking to her husband. वो कैसे अपने पति से बात कर रही God, है। not only that, they claim to be CFC members. और वो उतना ही नहीं प्रभु, वो CFC में जाते हैं ऐसा वो घोषित Look करते how हैं। they're talking. देखो उनकी बातें देखो। And you see what this fellow is watching on his mobile phone? आप देख रहे हैं ये व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में क्या देख रहा है? God, can you see it? क्या परमेश्वर देख पाते हैं He आप? thinks nobody is seeing it. उसको लग रहा है कोई देख नहीं पाता है, Looks around, nobody is there. और आसपास देख रहा है कोई नहीं है He वहां। doesn't realize the number of demons and angels who are watching him, seeing him watch pornography on that phone. और उसको ये भी पता नहीं कि बहुत सारे ऐसे स्वर्गदूत है और शैतान के दूत भी है जो उसको अश्लील चीजें देखते हुए देख Or रहे on a हैं, computer. और कंप्यूटर में। God says, what do you say about that? और वो परमेश्वर से कहता है आपको क्या कहना है इसके बारे में? He claims he's your child. You see, every Sunday he's in the meeting. और वो कहता है, वो परमेश्वर से कहता है कि वो हर रविवार तो कलीसिया में जाता है, Oh, you should see how he sings there. और कैसे वो सुंदर गीत गाता है But see वहां। what he's watching now. अभी वो क्या देख रहा है मैं देख पा रहा हूँ, That is called accusation. और ये है दोष लगाना। The devil doesn't tell lies. और शैतान कभी And झूठ he नहीं tells बोलता, lies to us, but he won't tell lies to God. वो हमसे झूठ बोलता है लेकिन प्रभु से सच बोलता है। See what he's doing. See what she's doing. वो बताता है प्रभु को, देख वो See क्या how- कर रहा है, see वो how- क्या कर रही See how है, he's talking now. See how she's talking. वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे बात कर रही See है, how this child of God is in such a bad mood today. He's angry with everybody he meets. और कैसे ये परमेश्वर का बेटा जो है वो कैसे मूड के अंदर हर एक के साथ गुस्सा हो रहा है। God, what do you say about that? और परमेश्वर उससे क्या कहेगा फिर? What do you think God will say? आपको क्या लगता है प्रभु क्या कहेंगे वहां? You say, no, no, no. The blood of Jesus just cleanses it. और वो ऐसे कहेगा नहीं नहीं प्रभु यीशु का लहू सब ठीक कर देता है। That's what you say. आप ऐसा कहते हैं। But do you think God is happy with that? क्या आप सोचते परमेश्वर इससे खुश होता है? He's sad. वो दुखी होता है। And I want to tell you something. और मैं आपको कुछ कहना चाहता You हूँ, don't realize this. Some of you don't realize it. और आप में से कुछ इस एहसास को नहीं कर पाते। Why does it say that there is a sin that can never be forgiven? क्यों ऐसा लिखा गया है कि ऐसा कोई पाप है जो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा? That is written in Matthew chapter 12. मत्ती 12 में जिस बारे में लिखा है। Now, I don't want to frighten any of you, और मैं आप में से किसी को भी डराना नहीं चाहता, but I want to be like a doctor who has taken a scan of your lungs लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि एक डॉक्टर की तरह जो एक स्कैन करता है आपके लंग्स को, and you're such a chain cigarette smoker, और आप बहुत ही स्मोकिंग करते हैं, and I say to you, मैं आपको कहता हूं, I see the scan, और मैं उस स्कैन को देखता हूं, another 4 or 5 cigarettes and your lungs will be destroyed. और 4 और 5 आप सिगरेट पिएंगे तो आपके लंग्स जो है पूरी तरह से आप खराब हो Never be जाएंगे, able to recover. आप कभी भी उसे ठीक नहीं हो पाएंगे। Stop it now. अभी उसे रोक दे। I tell you, people will stop. अगर मैं ऐसा कहूं लोग रुक जाएंगे। Or if you do this, if you do this type of thing, your cancer will get worse. अगर आप इसी प्रकार की चीजों को करते रहेंगे आपका कैंसर और बदतर हो You'll जाएगा, stop it. आप उसे रोक देंगे। But when it comes to sin, we don't take it so seriously. लेकिन जब पाप के बारे में बात होती है उसे हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। Jesus spoke about a sin which cannot be forgiven. यीशु मसीह ने पाप के बारे में बात किया जिसकी माफी नहीं है। There is such a sin. ऐसा कोई पाप है। Matthew 12:32, मत्ती 12:32, the last part, whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven in this age or in the age to come. और वहां कहता है जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। I don't think it's referring to just something we say. और मैं ये नहीं विश्वास करता इसे बोलने के द्वारा है, I think it refers to a standing against the Holy Spirit. ये इस बारे में है पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े होने के बारे में। See 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना 5 अध्याय
verse 16. 16 वचन। If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he must pray and God will give him life. यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे And God will forgive him. और परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। But there is a sin leading to death. Don't pray about that. लेकिन ऐसा भी पाप होता है जिसका फल मृत्यु है, उसके विषय में प्रार्थना न करे। See, it says there is such a sin where it's no use even praying for that person. He's gone. और यहाँ पे लिखा है कि ऐसा भी कोई पाप होता है जिसके विषय में कोई फल नहीं है, वो चले गया है It's no way of him being forgiven after that. और उसके बाद उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। So I look at it like this. और मैं इस प्रकार इसे देखता हूँ, When a person is keeping on sinning, एक आदमी, एक व्यक्ति जब पाप करते रहता and he है, hears many warnings like you're hearing right now. और जैसे हमने अभी सुना और बहुत सारी चेतावनी हम सुनते रहते You हैं ignore them. It's okay. और उसे अनदेखा करते हैं, ठीक है चलता है। His brother Zach is a bit of a fanatic in teaching such extreme things. और ब्रदर जैक ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही सिखाते He हैं just picks up these verses and tries to scare everybody. और ऐसे वचन को उठा के लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, Ignore it. उसको अनदेखा You करते हैं। sin and you ask the Lord to forgive you and you sin again. आप पाप करते हैं, क्षमा मांगते और See, पाप करते you're हैं। walking. There's a cliff in front of you. आप बढ़ते जाते और वहां एक खाई है Beyond that is hell. और उसके बाद नरक है। So you keep walking. आप चलते जाते हैं, You confess you're forgiven. Confess you're forgiven. Confess you're forgiven. आप पाप को कबूल करते हैं, माफी प्राप्त करते हैं, Again पाप you को कबूल confess करते you हैं, sin and you confess and you're forgiven. आप पाप करते हैं, कबूल करते हैं, फिर माफी You प्राप्त करते हैं, confess and you're forgiven. You confess you're forgiven. फिर इसी प्रकार कबूल करते हैं, माफी प्राप्त करते हैं, फिर पाप करते हैं You're getting closer and closer to that cliff. और उस खाई के और नजदीक आप आते जाते हैं। Now I don't know how close some of you are to that cliff. और मैं नहीं जानता आप में से कई लोग उसके बहुत करीब है उस खाई के, He keeps warning you. और मैं आप चेतावनी दे रहा हूँ The Holy Spirit warns you. और पवित्र आत्मा चेतावनी दे रहा है। No, I've been forgiven 1,000 times. God forgives. और 1000 बार अगर मैं पाप करता हूँ, परमेश्वर फिर भी मुझे क्षमा करता है। And the Bible says He does not remember my past. और वचन कहता है वो मेरा भूतकाल याद नहीं करता। Agreed. That's true. और मैं सहमत हूँ, ये सत्य बात है। But लेकिन you have been resisting the Holy Spirit 1,000 times also. 1000 बार आपने पवित्र आत्मा का विरोध भी किया है। Forgiven. God doesn't remember the past. आप परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, परमेश्वर आपका भूतकाल You याद नहीं kept करता, on resisting the Holy Spirit. लेकिन फिर भी आपने पवित्र आत्मा का हमेशा विरोध किया है। Finally, और अंत में a time will come. ऐसा समय आएगा, Mark my words. और मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, You will have no more desire to repent. और उसके बाद वो समय के बाद आपके पास कोई इच्छा नहीं रहेगी पापों से कबूल करने के You लिए, won't fall into hell immediately. और आप नरक में तुरंत नहीं गिरेंगे। You've gone beyond the line. You cannot be forgiven. और एक सीमा के बाहर जब आप चले जाते हैं तब आपको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, Because you have resisted the Holy Spirit so much. क्योंकि आपने पवित्र आत्मा का इतना अधिक विरोध किया है। Now some people ask me, और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, who have sinned thousands of times, हमने हजारों बार पाप किया है, Brother Zach, do you think I've sinned against the Holy Spirit? और क्या मैंने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है? I said, I'll tell you. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, The Holy Spirit is the one who gives you the desire to repent. पवित्र आत्मा ही है जो हमें पश्चाताप करने की इच्छा देता है। Acts 11:16. और प्रेरितों के काम 11:26, God gives people the repentance that leads to life. God gives people the repentance that leads to life. और परमेश्वर ही वो इच्छा को देता है जो पश्चाताप की और उसके द्वारा वो जीवन की ओर So बढ़ते I हैं। say, if you still have a desire to repent and turn away from your sin, then you have not reached the edge of the cliff yet. अगर आप में फिर भी पश्चाताप करने की इच्छा है, इसका मतलब आप उस खाई, उस सीमा तक अब तक नहीं Then पहुंचे you have हैं, not sinned against the Holy Spirit yet. और आपने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप नहीं किया Because the है। mark of a man having sinned against the Holy Spirit is he has no more desire to repent. और जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करता है, उस मनुष्य का चिन्ह है कि उसके अंदर और कोई इच्छा नहीं पश्चाताप करने के लिए। I met one or two people like that in my life और मेरे जीवन में से 1 या 2 व्यक्ति थे, who claimed to be Christians. वो अपने आप को मसीह कहते थे, They could commit adultery and make a joke of it. और वो व्यभिचार करके उसका मजाक उड़ाते थे। And I knew that there was not much hope for them. I witnessed to them, but there was no hope. और मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनके लिए ज्यादा कोई आशा नहीं है, Sin was a joke to them. और पाप करना उनके लिए एक मजाक है। It's serious. ये गंभीर बात है। You may say that will never happen to me. आप कहेंगे मेरे साथ नहीं हो सकता, Yeah, that's because you're still some way edges away, still some distance from the cliff. क्योंकि वो जो सीमा जो है वो खाई है, वो आपसे और भी अंतर पर है। If you keep playing the fool with God, अगर आप परमेश्वर के साथ वो मूर्खता के भरे खेलते रहेंगे you can fall over. तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। It says in Hebrews chapter 6,
इब्रानियों 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, that after you have tasted God's good word, अगर परमेश्वर के भले कामों को अगर आपने चखा है, Hebrews 6, इब्रानियों 6 verse 4, 4 you've वचन, been enlightened आपने ज्योति पाई and है, you have tasted the heavenly gift, स्वर्गीय वरदानों को you चखा है, have partaken of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं, tasted the word of God, वचन को आपने चखा है, tasted the powers of the future age, और आने वाली युग की सामर्थ का and स्वाद all चखा है, this, God's mercy with you, और परमेश्वर ने अपनी दया में सब and कुछ then you दिखाया, fall away. और उसके बाद जब आप गिरते हैं, That means you reject, and then gone. इसका मतलब आप हर एक चीज को तिरस्कार करते हुए, त्यागते हुए फिर आप गिरते हैं। It is impossible to renew them to repentance. अभी ये असंभव हो जाता है उनको पश्चाताप की ओर लाना। You see, is it possible that a man can come to the place where he doesn't want to repent? और क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाए जहां उसे पश्चाताप करने की इच्छा नहीं है? I believe the word of God. मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। Not my opinion. ये मेरा कोई सुझाव नहीं, I believe in a very compassionate God, और मैं एक करुणामय परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, but a God who hates sin. लेकिन एक परमेश्वर जो पाप से नफरत And करता the है, more light we have, the more dangerous it is for us to sin. और जितना अधिक हमारे पास प्रकाश होता है उतना अधिक हम खतरे में होते हैं पाप करने के। I have told people who come regularly to CFC Bangalore, और मैंने देखा है कि कलीसिया CFC बैंगलोर में नियमित रूप से वो आते हैं। I say it's a very dangerous place for you to come here if you have no intention to follow the Lord. अगर ये बहुत ही आपके लिए खतरनाक जगह है आने के लिए, अगर आपके अंदर कोई भी इच्छा नहीं Because है परमेश्वर का you अनुसरण will करने hear के लिए, such a high standard of God's word here. आपने परमेश्वर के वचन के बहुत ही उच्चतर स्तर को यहाँ You सीखा keep है। rejecting it. अगर आप उसका तिरस्कार करते Your रहेंगे crime will be very great. तो आपका जो जीवन है बहुत ही निर्दय होगा। So if you have no intention to obey, अगर आपके पास कोई इच्छा नहीं है, please go to some CSI church or Catholic church or something. You will be safer there. और तहाँ एक दूसरे CSI कैथलिक चर्च में वहां आप Because सुरक्षित there रहेंगे, you won't hear such a high standard. क्योंकि वहां ऐसे उच्च स्तर को आप नहीं सुनेंगे। But to whom more is given, Jesus said, more will be required. और यीशु ने कहा जिसको ज्यादा दिया जाएगा उससे ज्यादा मांगा जाएगा। So if you keep on rejecting, a time can come when you can fall away and there's no more repentance. और जब आप उसको त्यागते जाते फिर ऐसा समय आता है जहां और पश्चाताप की इच्छा नहीं रही। That means there's no more repentance. That's what it says here. और यहाँ पे ये लिखा है कि अभी और कोई पश्चाताप That नहीं is है। why I say, if you still have a desire to repent, thank God, you haven't crossed the red line yet. इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास इच्छा है पश्चाताप करने की, मतलब आपने उस लाल सीमा को अब तक पार नहीं किया है। So, thank God, you still have a desire to turn from sin. और धन्यवाद कि आपके पास उस पाप से मुड़ने के लिए अभी भी एक इच्छा है, Don't lose that. उसको खोए नहीं। Don't just confess your sin when you fall. और जब आप गिरते हैं तभी आप अपने पापों को कबूल न करें। Don't just say, Lord, I'm sorry I looked at pornography. और इतना ही नहीं कि मैंने एक अश्लील चीज देखी और मुझे माफ करे, Hate it. उससे घृणा Say, करें Lord, I want to turn from it. और उससे कहे प्रभु मैं इससे फिरना चाहता हूं, Repent. और पश्चाताप करें। Then there's some hope for you because you've taken one step back. और तब आपके लिए कोई आशा है, तब एक कदम आपने पीछे लिया, That's good. ये अच्छी बात है। Then you're backing away from that red line and that cliff. और वो लाल जो सीमा है उससे आप पीछे की ओर हट रहे But हैं। if you just confess, oh Lord, I'm sorry, please forgive me. और अगर सिर्फ आप कबूल करें प्रभु मेरे से गलती हो गई, You don't hate yourself and turn back. और उस पाप से घृणा नहीं करते और आप पीछे की ओर नहीं आते, Then you're standing there. You'll take one more step. You're going towards that line. और तब वहां से एक और कदम आगे जा रहे हो, उस सीमा की ओर आगे बढ़ रहे No, हैं। these are very serious things. और ये बहुत गंभीर बातें हैं I don't like to talk about it. और मुझे अच्छा नहीं लगता इन बारे में बात करना। But what will you think of a doctor आप ऐसे डॉक्टर के बारे में कल्पना who करें takes a scan of your inner body जो आपके भीतरी जो शरीर है उसका वो स्कैन and लेता he है, sees your cancer is terribly advanced, आपका जो कैंसर है बहुत ही आगे बढ़ चुका है, but he's done so many operations that he says he knows you can remove that cancer and cure you 100%. और उसको पता है कि उसने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए हैं और वो आपके अंदर भी वो करके उसे निकाल देगा, But he doesn't tell you the truth. लेकिन वो सत्य नहीं कहता आपको। He says, oh, you're okay. वो कहता है आप ठीक है, Collects your money, पैसा आपसे लेता है you go home to die. और फिर आपको घर भेज देता है ताकि आप मर जाए। Is that doctor your friend? क्या आपका वो ऐसा डॉक्टर मित्र है Because he patted you on your back and made you happy? और आपके कंधे पर थपथपता है और आपको खुश करता है? Or is the other doctor your friend who said you're in a terrible condition and you will die in a few days? और ऐसा डॉक्टर जो कहता है कि आपकी समस्या बहुत गंभीर है और आप कुछ दिनों में मरने वाले But हैं I can operate on you and cure you completely. और मैं आपको ऑपरेशन करके पूरी तरह से अच्छा करूंगा। That's what Jesus says. और इसी प्रकार यीशु ने कहा। There are great words of comfort in scripture. और वचन के अंदर बहुत आशा और सांत्वना के वचन There are है, great words of warning. लेकिन चेतावनी के भी वचन है। Both are necessary if we are to
press towards God's highest. अगर परमेश्वर के उच्च स्तर तक हमें पहुंचना है तो ये दोनों ही चीजें जरूरी है। Comfort alone will not take us there. और केवल सांत्वना ही हमें वहां नहीं ले जाएगा, We need strong warnings. लेकिन हमें एक मजबूत चेतावनियों की जरूरत है। That is how we get close to the Lord. और उसी प्रकार हम प्रभु के नजदीक जाते हैं। And those who are feeling very discouraged and downcast, they need comfort. और जो बहुत ही निराश और निचला महसूस करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन सांत्वना की जरूरत And है। those who take sin lightly and play the fool with the world, और जो लोग पाप के साथ खेलते हैं और उसे साधारण तौर से लेते they हैं, need warnings. उनको चेतावनी की Both जरूरत are है। in the Word of God. और दोनों ही वचन के अंदर है। Like in English we say और अंग्रेजी में इस प्रकार कहता है that we preach in such a way to disturb those who are comfortable. इस प्रकार कहते हैं कि हम इस प्रकार प्रचार करते हैं ताकि जो बहुत अच्छे और आरामदायक परिस्थिति में है उनको हम विचलित करें, And we want to comfort those who are disturbed. और जो विचलित है उसको हम सांत्वना दें। So there is a twofold ministry. यहाँ पे दोहरी एक सेवकाई है, Comforting the disturbed and disturbing the comfortable. जो विचलित है उनको सांत्वना देना, और जो सांत्वना नहीं जिन उनको विचलित करना। And you know which category you're in. और आप अपने बारे में जानते हैं, If you have begun to take sin seriously, अगर आपने पाप को गंभीरता से लेना आरंभ किया है, there's great hope for you. आपके लिए एक बड़ी आशा है। You know, I have had so many people who come to CFC Bangalore. और मेरे पास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति लोग जो है CFC बैंगलोर में आते हैं, Believe me, who have told me this. उन्होंने मुझसे कहा, विश्वास करें Brother Zach, I never was born again till I came here. और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं जब तक यहाँ आया तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरा Because- नया जन्म नहीं हुआ है। They told me I was saved over there because I said, Lord Jesus, come into my heart. और उन्होंने वहां एक जगह पर कहा कि मेरा उद्धार हो, क्योंकि मैंने प्रार्थना की प्रभु यीशु But- मेरे मन में आ। I never knew what sin was. लेकिन मुझे पता नहीं था पाप क्या है, How could I turn from sin if I did not know what sin was? और मुझे अगर पाप पता नहीं तो मैं उस पाप से कैसे मुड़ सकता They हूँ। just said, give up your smoking and drinking and gambling and dancing. और उन्होंने कहा कि उसे सिगरेट पीना, दारू पीना, जुगार खेलना, शराब पीना छोड़ दो, I finished with that. और मैंने उसको कर लिया। But only when I came here, I realized that sin is in the heart. लेकिन जब मैं यहाँ तभी मुझे पता चला कि पाप तो मेरे हृदय में है, Repentance is turning away from the root of sin. और जो पश्चाताप जो है, जो पाप का मूल है, उससे मुड़ना है। And how can I be born again if I don't repent? और अगर मैं पश्चाताप नहीं करता हूं तो कैसे नया जन्म They प्राप्त say, कर I'm सकता हूं। thankful that I came here, that I could really be born again. और धन्यवाद कि प्रभु का मैं यहाँ पर आया और मैं नया जन्म प्राप्त किया। But they were born again because they heard the strong word of God against sin. उनका नया जन्म इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन जो पाप के विरोध में उन्होंने You can सुना। be healed of every sickness supernaturally and still go to hell. आप अलौकिक रीति से हर रोग से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नरक में जा You know सकते how हैं। many thousands of people were healed by Jesus in his lifetime on earth? और आपको पता है कितने हजारों लोग या कितने लोग यीशु की सेवकाई से चंगाई प्राप्त किया? Thousands. हजारों लोग। How many were waiting for the Holy Spirit on the day of Pentecost? और पेंतिकोस्त के दिन कितने लोग वहां प्रभु की बाट जो रहे थे? 120. 120 लोग। What happened to all the other thousands? और हजारों लोग जो चंगाई, उनका क्या हुआ? We don't know what happened. पता नहीं उनका क्या हुआ। You can be healed and still go to hell. आप चंगाई प्राप्त करके भी नरक में जा सकते हैं। So that's why we don't preach healing here, we preach salvation from sin. इसलिए यहाँ हम चंगाई को घोषणा नहीं, प्रचार नहीं करते, लेकिन पाप से उद्धार का प्रचार करते हैं। I've known people with AIDS who got converted after they got AIDS. और ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको एड्स की बीमारी होने के बाद उनका उद्धार हुआ, And there's no cure for AIDS. और एड्स के लिए कोई वहां पे नहीं है इलाज। A couple, they were born again. और वहां 2 दंपति थे जिनका उद्धार हुआ। And I told them, मैंने उनसे कहा, your sins are forgiven. आपके पाप क्षमा हुए, Hate what you have done in the past. और जो आपका पिछला जीवन था उसे आप So घृणा God करें। has forgiven you. आप परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है, You may be never healed of your AIDS. और आपके पापों से शायद आपके Your- एड्स से आपको शायद चंगाई नहीं मिलेगी कभी, And they died. और वो उसमें मृत्यु हुआ उनका, But they went to heaven. लेकिन वो स्वर्ग गए। You can go to heaven even if you had AIDS. अगर आपके पास एड्स की बीमारी है फिर भी आप स्वर्ग जा If सकते you have हैं, repented of your sin. यदि आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है। I didn't fool them by saying, oh, God will heal you. मैं आपको मूर्ख बना सकता हूं कि परमेश्वर आपको चंगाई If देगा, you're not healed, oh, you don't have faith, that's why God is not healed. I don't say such stupid things. और मैं ऐसे मूर्ख बातें नहीं कहता कि आपके अंदर विश्वास नहीं इसलिए परमेश्वर They're आपको चंगाई already नहीं suffering देता। with AIDS. Why should I torture them saying they've got वो unbelief? पहले ही एड्स से इतनी समस्या में है, मैं और क्यों उनको यातना दूं? I say, no. Sometimes we have to reap what we have sown. और मैं उनसे कहता हूं कि कई बार हम जो बोते हैं उसको हम But काटते हैं, God will forgive you. लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा You करेगा। know, why does God allow us to reap what we have sown? क्यों परमेश्वर अनुमति देता है जो हम जो बोते हैं उसको काटने के So लिए? that we don't take that sin seriously. क्योंकि हम उस पाप को गंभीरता से उसके For बाद ले। example, if you keep on watching pornography,
एक उदाहरण के रूप में अगर आप अश्लील बातें चीजें देखते As रहते a हैं, young man, you keep on watching pornography. एक जवानी के दिनों में उसको आप देखते रहते हैं, That will remain in your mind, वो आपके मन में रहेगा and for the next 40 years, you'll be getting dreams about what you've seen, even if you've stopped watching. और आगे के 40 साल तक यदि आपने वो देखना बंद भी किया हो, उसी विचार वही सपने आपको आएंगे। Go and ask any man किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं who is indulged in that. जो इसमें पड़ा हुआ है, He may not be honest, वो ईमानदार शायद नहीं but if होगा, he's honest, he'll tell you, brother, I'm being tortured in my dreams. लेकिन वो ईमानदारी से कहेगा कि मेरे स्वप्न मेरे के अंदर मैं इस तरह से यातना You उठाता can हूँ। slowly eliminate it if you fill your mind with the word of God. वो धीरे धीरे करके हम वो निकलेगा जब अपने मन को परमेश्वर If के you वचन से fill भरते your mind हैं, with God's word, then those other things will get pushed out slowly. और जब परमेश्वर के वचन से अपने मन को भरेंगे वो सारी चीजें निकलती Otherwise, for जाएंगी। 40 years, you'll be tortured with it, even though you've stopped watching pornography. 40 साल तक आप उससे आप यातना उठाएंगे यदि आपने उसको देखना बंद भी कर दिया हो, Your married life will be unhappy. और आपका जो विवाहित जीवन हो वो खुश नहीं होगा। What are you getting? You're reaping what you've sown. उससे आपको क्या मिल रहा है? आपने जो बोया उसकी कटनी काट रहे You हैं। say, why doesn't God remove the memory of all that immediately? और आप कहेंगे कि क्यों परमेश्वर उस याददाश्त को तुरंत निकाल नहीं देखता। If He did that, you would do it again. अगर आप प्रभु ऐसा कर देगा तो आप वापस वैसा So करेंगे। only because you reap what you sown, that way God protects you from doing it again. इसलिए कि जो आप बोते हैं वो आप काट नहीं खाते, उसके द्वारा ही परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है पाप से। But there's hope if you allow God's word to be put into your mind. आपके लिए एक आशा है जब आप परमेश्वर के वचन को आपके मन में अनुमति देते All हैं। young men, their mind is filthy. और हर एक जवान व्यक्ति उनके मन में गंदगी All है। may not have seen pornography to the same extent. और सारे जवानों ने But शायद सारे वो even- अश्लील बातें नहीं देखी Even होंगी। without watching, so many dirty thoughts come. अगर आप वो हमारे वो अश्लील चीजों को देखते उन विचारों को आने देते हैं, Every man, young man faces it. और हर एक जवान व्यक्ति इसका सामना करता है। And I said, Lord, how to clean up my mind? और कैसे प्रभु मैं अपने मन को शुद्ध करूं? I realized there's a word in Ephesians 5 which says the washing of water with the word of God. और इफिसी 5 के अंदर वचन है कि परमेश्वर के वचन के जल के द्वारा उसे मैं शुद्ध करता हूं। So little by little, as I put God's word and meditated on God's word and put it into my mind, और धीरे धीरे करके जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, मनन करता हूं, उसे मन में रखता हूं, the picture I got was of a bowl full of dirty water. और एक नाव जो पूरी तरह से एक गंदे पानी से है, And that's my mind. और वो एक मेरा मन है एक कटोरा, And you keep on pouring clean, pure water into it. और उसके अंदर मैं एक शुद्ध पानी डालते जाता हूं। This will become less and less dirty because it's overflowing. वो कटोरे का जो पानी है वो और साफ होते जाएगा धीरे धीरे Because it's करके, overflowing. क्योंकि वो उमड़ रहा है। It's not so dirty now. अभी वो इतना गंदा नहीं A है, little less dirty now. अभी वो कम गंदा होगा, Little less, little less, little less, और little कम less. कम करके, Until one day, और एक दिन इस तरह से, you never get a dirty dream. और उस प्रकार फिर आपको कभी वो बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। The bowl has become clear water because you poured on, kept on pouring God's word into it. अभी वो कटोरे का अंदर का जो पानी जल है वो शुद्ध हो गया, क्योंकि उसमें आपने शुद्ध जल वचन के द्वारा डाला है। Be careful that you don't put in some more mud once in a while. और सावधान रहे कि अब आगे जाकर उसमें कोई धूल न डाला है आप। There's hope for you. आपके लिए एक आशा है, Your dirty mind can be clean. आपका एक गंदा जो मन है वो शुद्ध हो Your सकता dirty है, dreams can be pure. आपके जो गंदे सपने हैं वो शुद्ध हो सकते Your हैं, scary dreams will आपके जो go away. भयानक और डरावने सपने वो जा सकते हैं। A lot of people have scary dreams, some people have dirty dreams. और कई व्यक्ति को गंदे सपना आते हैं, किसी को डरावने It सपना can आते go हैं, completely away if you pour God's word into it. और अगर प्रभु के वचन आप डालेंगे वो पूरी तरह से वो चले I'm जाएंगे। telling you from my testimony. और मैं अपनी गवाही से कहता I हूँ, never get a scary dream, I never get a dirty dream. और मैं अपनी गवाही से कहता हूँ, कभी मुझे गंदा या कोई डरावना स्वप्न नहीं आता, Because I'm very careful now, because I know क्योंकि मैं सावधान रहता हूँ, जानता हूँ what terrible it is to have a dirty mind. और कितना भयंकर है कि And the एक गंदा मन होना। Other thing is, when your mind is clear, God can speak to you clearly. और दूसरी बात, जब आपका मन शुद्ध होगा, परमेश्वर साफ तरीके In से the आपसे बात करेगा, difficult decisions of life, you have a clear word in your mind because there's no muck there. और आपके निर्णय लेने की अवस्था में परमेश्वर साफ तरह से बात करेगा, क्योंकि वहां कोई गंदगी या धूल नहीं है। So holiness is the best not only for eternity but for this life also. और पवित्रता केवल अनंत काल के नहीं, लेकिन अभी इस जीवन के लिए उपयोगी और लाभदायक है। Press on, don't give up. और आगे बढ़ते रहे, हार न माने। It won't happen in one day, और ये एक दिन में नहीं but होगा, you keep at it, it will happen in your life. और दिन प्रतिदिन करते जाए और ये होगा। It's like these gyms, where you have pictures of muscular people. और जिम में जैसे हम देखते बहुत ही एक मजबूत मांसपेशी वाले मनुष्य को देखते हैं, And one fat man goes and says, "Can you give me that type of body in one day?" और एक मोटा आदमी वहां पर जाकर कहता है कि क्या मुझे ऐसा शरीर आप दे सकते हैं?
No, he said not in one day, but if you come here regularly every day, और वो कहेगा कि एक दिन में तो नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे निरंतर आते रहो, एक दिन शायद होगा few years you can be like that. और कुछ सालों में शायद ऐसे बन जाओगे। That's what I'm saying. और यही मैं कहना चाहता There's a हूँ, spiritual gym. एक आत्मिक जिम है You come regularly, take exercise, read the word of God. और वहां पर नियमित रूप से आइए, वचन को पढ़े, You can have a spiritually mighty life. और आप आत्मिक रूप से बहुत ही सामर्थ्य और ताकतवर pray. आपका जीवन होगा। Heavenly प्रार्थना Father, करें। please. स्वर्गीय पिता, Remind us of all that we have heard today. प्रभु हमें याद दिला जो बातें आज हमने Help us सीखी to है press on to perfection. और सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए मदद करें। Encourage everybody here because there is no discouraging word in the church. प्रभु हर एक को प्रोत्साहन करे क्योंकि कलीसिया के अंदर कोई भी निराशा का वचन नहीं। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. आमीन।